Morning students. Today in this video we shall discuss the next chapter of the accountancy, which is very important, that is admission of a partner. This chapter is very important. So far we have discussed two chapters of partnership, that is first was fundamental, and in the fundamental chapter of partnership we discussed the basic things about the partnership. Then in the previous chapter we discussed the valuation of goodwill, different methods of valuation of goodwill. Now the next chapter is admission of a partner. Means how new partner is admitted into a partnership firm. How new partner is admitted into a partnership firm. Suppose two partners are there and doing the partnership business. They can admit the third partner into the partnership firm, but there are some conditions. Condition is that all the partners, all the existing partners must be agreed to admit the new partner into the partnership firm. Once all the existing partners are agreed to enter the new partner into the partnership firm, now new partner will be admitted. But once new partner will be admitted, there may be different kinds of calculations which are needed to be done at the time of एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. कई तरह की कैलकुलेशन जो हैं जो करनी पड़ती हैं नए पार्टनर की एडमिशन के ऊपर. कौन कौन सी कैलकुलेशन हैं? नंबर वन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देन sacrificing ratio. Then goodwill treatment. Then treatment of accumulated profits and losses. Next is the revaluation of assets and liabilities, and last one is adjustment of capital. So these are six types of calculations which are needed to be done at the time of admission of new partner, and these calculations are new profit sharing ratio, treatment of new profit sharing ratio. When new partner is admitted into the partnership firm, the existing ratio will be changed. So new profit sharing ratio is to be calculated. Then sacrificing ratio. Suppose two persons are doing the business, the third is coming inside, then they both those who are working earlier, existing partners, they must have sacrificed some of the share in favor of new partner. Then goodwill treatment. New partner, when new partner is admitted to the partnership firm, he has to bring his share of goodwill. Then treatment of accumulated profits and losses. Accumulated profits are those profits which are retained from so many years for some unforeseen circumstances. These accumulated profits are to be adjusted. Then revaluation of assets and liabilities and adjustment of capital. So these six types of calculations are needed to be done at the time of admission of a new partner. From this chapter, in board exam, you will get one 8-mark question, but that is a comprehensive type question, and if we want to solve the comprehensive type question, we need all these calculations to be understood in a good manner.
मतलब अगर इन सब 6 कैलकुलेशंस को हम सीखेंगे तभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आता है। और यहाँ पर जो चीज़ें आप सीखेंगे, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो, वो आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में भी काम आना है। सो दिस चैप्टर इज द बेसिक्स ऑफ partnership. This is very important. Okay, so all these calculations we will do one by one. First of all, new profit sharing ratio. Today we will discuss this first treatment, new profit sharing ratio. When I will make you understand regarding this calculation, you will do a lot of practice. You have the books at home, you are free at home. Do all these type of questions at your home so that the questions of this treatment should be very, very easy for you. Okay, now we will discuss new profit sharing ratio. When new partners are admitted into the partnership form, then new profit sharing ratio is calculated. Suppose A and B are partners, their ratio is 3:2. C is coming in as a new partner in the firm. But now what will be his share? What will be his share? That is to be calculated. So this is the first treatment, how the new profit sharing ratio is to be calculated. Now it's very important. When new profit sharing ratio is calculated, we have the 4 cases. How many cases? 4 cases. First case, when new partners share is given and no other information is given. फर्स्ट केस है। अब इन चारों केसेस को आपने अच्छे से समझना है। पहला केस किस तरह का हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि 2 पार्टनर है ए बी, ओल्ड पार्टनर बोलेंगे इनको, एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे, ए बी, रेशियो है 3:2. सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर इन द फर्म। टोटल में से उसको 1/4 मिलेगा। लेकिन ये आपको ओल्ड पार्टनर का शेयर हमेशा दिया जाता है क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो हम इक्वल लेंगे, क्योंकि व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट देयर, देन वी कंसीडर द रेशियो एज इक्वल। अब फर्स्ट केस क्या कह रहा है? व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। सी का शेयर दिया है, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब ये नो अदर इंफॉर्मेशन कौन सी है? ये नो अदर इंफॉर्मेशन है ये जो उसने सी ने 1/4 लिया है, ये किससे कितना लिया है? ए से कितना लिया और बी से कितना लिया, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का ही शेयर लिखा हो और ये नहीं लिखा हो कि ये पार्टनर अपना जो शेयर है वो पुराने पार्टनर से किस रेशियो में लिया है, 1/4 लिया है, तो ज्यादा ए ने दिया या ज्यादा बी ने दिया या इक्वल दिया या कैसे दिया, ये नहीं लिखा हुआ है। सो फर्स्ट केस इज व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, देन नो अदर इंफॉर्मेशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन and no other information is given. A भी जो पार्टनर है ये तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, C is coming for 1/4 share and no other information is given. This is case number 1. अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, let total share of the firm is 1. C is share 1/4, रिमेनिंग शेयर मतलब सी का 1/4 है, तो सी को देने के बाद बचा ए और बी का, वो कितना हुआ 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ओके, अब ए और बी के पास 3/4 है, तो ए का कितना हुआ, ए न्यू शेयर, टोटल दोनों में 3/4 है। अब पुराने शेयर में काट रहे हैं 3 into 3/5, that is 9/20. Okay, B's new share कितना है दोनों के पास 3/4 into B का शेयर क्या है
2/5, that is 6/20, 6/20। अब A B C तीनों का शेयर हमने निकाल लिया, न्यू रेशियो बन जाएगा। कैसे निकाला? A B C, A का 9/20 ये रहा, B का 6/20 ये रहा, और C का जो सबसे पहले निकाल लिया था 1/4, दैट इज 1/4। अभी भी हम ये रेशियो बना नहीं है, सबका डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए तब रेशियो बनेगा। तो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 नहीं है, इसको 20 बनाना पड़ेगा। क्या करें? 5/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 5 दैट इज 5/20। अब रेशियो बन गया, देखो बच्चों, 9/20, 6/20, 5/20। अब जो न्यूमरेटर है उसको टोटल करो, 9, 6, 15 और 5, 20। इट शुड बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर। 20 है तो रेशियो आपका बिल्कुल ठीक है। रेशियो बना 9:6:5, 9:6:5। ओके, this is the first case which is very important, and this is to be done by you all. So many questions you will find such type of there in the book, so solve all these type of questions. Now case number 2 we will discuss. Case number 2, हम निकाल रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए पार्ट हमने कर लिया था, अब करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में क्वेश्चन होगा, व्हेन न्यू पार्टनर has taken his share equally from old partners। मतलब किस तरह का क्वेश्चन होगा? उस क्वेश्चन इस तरह का होगा, लाइक ओल्ड पार्टनर्स होंगे, उसका शेयर दिया होगा, सी का शेयर भी दिया होगा, और लिखा होगा न्यू पार्टनर ने अपना शेयर इक्वल लिया है पुराने पार्टनर से। पुराने पार्टनर चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, जितना भी है इक्वल लिया है। इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। A, B are partners, ratio is 3:2, C is coming for 1/4 share, which he, आगे लाइन क्या लिखी होगी? which he मतलब C, which he acquires equally from A and B। ये क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो केस नंबर 2 है। किस तरह से? अगर क्वेश्चन ऐसा है, ए बी पार्टनर है और सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, यहीं तक होगा केस 1। लेकिन अगर लिखा है कि सी जो 1/4 के लिए आ रहा है वो इक्वली एक्वायर कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से, ओल्ड पार्टनर से, तो केस नंबर 2 बन गया। तो केस नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 और 2 में 1 केस में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया होता है, ये नहीं लिखा होता उसमें कितना लिया। लेकिन केस नंबर 2 में ये लिखा होता है कि उसका शेयर इक्वली लिया। ये केस नंबर 2 है। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों, अगर इक्वली लिया है तो सी का शेयर क्या हुआ? सी शेयर 1/4। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? ए सेक्रीफाइस, उसने सी को उसके शेयर का आधा दिया, इक्वली लिया ना, तो 1/4 लिया, तो 1/4 का आधा ए से लिया, आधा बी से लिया। तो ए सी का शेयर 1/4, आधा दिया ए ने, वही ए का सेक्रीफाइस हुआ, दैट इज 1/8। अब ए का न्यू शेयर क्या बच गया? पुराना था 3/5, दे दिया 1/8, बचा कितना? वो क्या बन जाएगा? एज न्यू शेयर, दैट इज 3/5 माइनस 1/8। ये बन गया आपका 40 एलसीएम, 24 माइनस 5, 19/40,
ठीक है, अब बी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। बी सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? बी ने दिया क्या? सी को उसके शेयर का आधा, सी का शेयर है 1/4, उसका आधा कितना हो गया? 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। ओके, 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। अब बी का न्यू, बी ने ये दे दिया, बी का शेयर था 2/5, 1/8 उसने दे दिया सी को। अब बी के पास क्या बचा? वो बी का न्यू शेयर होगा। बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 minus 1/8, again 40, 16 minus 5 that is 11/40। ए बी सी तीनों का शेयर निकाल चुके हैं हम, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। ए बी सी, ए का निकाला 19/40, बी का निकाला 11/40 और सी का तो हमें पता ही है 1/4 है। लेकिन जब तक हम 1/4 लिखेंगे रेशो नहीं बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हुआ। तो डिनोमिनेटर इसी का इक्वल हो सकता है, इंटू 10 अपॉन इंटू 10 दैट इज 10/40। अब रेशो क्या हो गया? 19:11 इज टू 10। टोटल करेंगे 19 और 11 30 प्लस 10 40, 40 इज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इस केस में क्या किया हमने? बस एक लाइन एक्स्ट्रा होती है कि नए पार्टनर का जो शेयर दिया होता है उसमें लिखा होगा कि ये शेयर उसने इक्वली दिया। तो हम क्या करते हैं? न्यू पार्टनरशिप, और अगर दो पार्टनर है तो उन्होंने आधा आधा दिया होगा, तो आधा निकाल लो कितना कितना दिया, 1/4 का आधा। अगर तीन पार्टनर होंगे पुराने ओल्ड, तो उन्होंने 1/3 दिया होगा, तो 1/4 इंटू 1/3 उसका सेक्रीफाइस निकलेगा। अगर पुराने चार पार्टनर है और न्यू शेयर कितना, आने वाले पार्टनर का शेयर क्या 1/4, और चार पार्टनर है तो चारों ने कितना दिया होगा 1/4 1/4 1/4, तो सेक्रीफाइस कितना निकलेगा सबका 1/4 इंटू 1/4। यहाँ दो ही पार्टनर है तो आधा आधा दिया, आधा का 1/2, तो सी का शेयर 1/4 है, आधा ए ने दिया, कितना दिया 1/8। ये अगर इसने आधा दे दिया ए ने, तो ए का न्यू कितना बना, क्योंकि इतना था 3/5, इतना दे दिया, तो ये जो बचा वो कितना 19/40। इस तरह बी का सेक्रीफाइस 1/4 का आधा माइनस ये सेक्रीफाइस हो गया। अब उसका न्यू निकालो, ठीक है। एक चीज आपको और बता दो, यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से कुछ दे देते हैं तभी न्यू निकलता है, तो ओल्ड माइनस न्यू इज द सेक्रीफाइस। इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये है आपका केस नंबर 2। बच्चों ये दो केसेस हैं, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, और कोई क्वेरी है यू कैन कॉल मी ऑल द टाइम। अगले वीडियो में हम आगे के केसेस डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।